Hello, good morning everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session we are going to learn first chapter of engineering physics जिसका नाम है realistic mechanics. Okay. Today's lecture first topic is what is frame of reference, define inertial and non-inertial frames of reference. ओके चलिए हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी जानते हैं। ओके देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which we can predict the position and motion of any object at different instant of time. Okay, frame of reference क्या है? Frame of reference is a coordinate system with respect to which we can predict the position and motion of any object at different instants of time. Okay, देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ टू टाइप्स। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस in which Newton's law of inertia and other law of motion hold good. These frames are either at rest or motion with a constant velocity with respect to each other. Any object with net force 0 on it will be unaccelerated with respect to these frames of reference. Okay? For example, a train is in rest or in uniform motion. Okay? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड। ओके दिस फ्रेम्स आर आइदर एट रेस्ट और मोशन विथ constant velocity with respect to each other. Okay, and our second is नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए हम देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड। These frames are accelerated. Any object with net force 0 on it will be accelerated with respect to non-inertial frame of reference. For example, a train is accelerated or retarded motion rotating merry-go-round. Okay? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वह इस प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया और अदर्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते हैं। ओके दिस फ्रेम्स आर accelerated. Any object with net force 0 on it will be accelerated with respect to नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा हो गया ए ट्रेन इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन रोटेटिंग मैरी गो राउंड। ओके आवर सेकेंड क्वेश्चन इज अर्थ एन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। Earth is a non-inertial frame of reference because it is an accelerated frame of reference. Earth is rotating not only about its axis but also orbiting around the sun due to its orbital motion. It जो हमारा अर्थ है अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारा अर्थ है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ इज
rotating about not only about its axis. जो हमारा अर्थ है सिर्फ अपने एक्सिस के अराउंड ही नहीं रोटेट करता बट आल्सो ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. ओके, ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन. It continuously changes its velocity and direction of motion. Due to change in velocity, it is an accelerated frame of reference. The value of acceleration is very small, 0.006 meter per second square, and can be neglected. So for practical purposes, Earth is regarded as an inertial frame of reference. It continuously changes its velocity and direction of motion. Okay, due to change in velocity, it is an accelerated frame of reference. Okay, the value of acceleration is very small. जो acceleration की वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है, नियर अबाउट 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कैन बी निगलेक्टेड. So for practical purposes, Earth is regarded as inertial frame of reference. अगर हम प्रैक्टिकल पर्पज से देखें तो हमारा अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज it is an accelerated frame of reference. Earth is rotating not only about its axis but also orbiting around the sun. Okay, जो हमारा अर्थ होता है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बिकॉज इट हैज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ जो हमारा है रोटेट करता है नॉट ओनली अबाउट इट्स एक्सिस बट आल्सो ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. ओके, our next question is describe Galilean transformation equation. What were the limitations of these transformation equations? चलिए हम देखते हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है और उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं. ओके, गैलीलियंस न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. Let S and S dash be two frames of reference such that frame S dash is moving along positive x axis with velocity v related to frame S. If x y z t and x dash y dash z dash t dash are the coordinates of the some event in frame S and S dash, according to classical mechanics, the measurement in x direction made in S dash will be smaller than that made in S by the amount Vt, which is the distance moved by S dash in direction x. That is, x dash is equal to x minus yt. Okay, this is our first equation. There is no relative motion in there is no relative motion in y and z directions. So y dash is equal to y and z dash equal to z. Okay, there is no relative motion in y and z direction. So y dash equal to y and z dash equal to z. And in classical mechanics, t dash equal to t. Okay, equation first to fourth are Galilean's Newtonian transformation equations. Okay, लेट हमारा जो है यस और यस डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच दैट जो हमारा फ्रेम यस डैश है मूव कर रहा है मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी. ओके, रिलेटिव टू फ्रेम यस.
Okay, and x y z t and x dash y dash z dash t dash are the coordinates of the some event in frame s and s dash. Okay, according to classical mechanics, the measurement in x direction made in s dash will be smaller than that made in s by the amount vt, which is the distance moved by x dash in direction x. That is, x dash is equal to x minus vt. This is our first equation. Okay, there is no relative motion in y and z direction, so जो हमारा वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, सो वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड इन क्लासिकल मैकेनिक टी डैश इज इक्वल टू टी. दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन. इक्वेशन 1 to 4 आर गैलीलियन न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. ओके, चलिए हम देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं गैलीलियन न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की. इफ वी अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज v इक्वल टू c in equation first of the Galilean's equation, then in frame s dash the absorbed velocity would be c dash equal to c minus v, which is violation of idea of relativity. So this requires the modification in Galilean transformation equations. Okay, if we apply the concept of relativity, that is v equal to c in equation first of Galilean equations, then in frame s dash the absorbed velocity would be c dash equal to c minus v. Okay, which is violation of the idea of relativity. So this requires the modification in Galilean transformation equations. Okay, our next question is what is ether hypothesis. चलिए हम देखते हैं कि ether hypothesis क्या होता है. Ether hypothesis, the physicists of 19th century assumed that entire space of universe including vacuum is filled by a hypothetical light transmitting medium called ether, which is rigid, invisible, massless, perfectly transparent, high elasticity, and negligible density. All bodies, including Earth, move freely through this hypothetical medium without disturbing it. जो 19th सेंचुरी के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एज्यूम किया कि जो हमारा इंटायर स्पेस है यूनिवर्स का, इंक्लूडिंग वैक्यूम, इज फिल्ड बाय द हाइपोथेटिकल लाइट ट्रांसमिटिंग मीडियम कॉल्ड एथर. जो हमारा यूनिवर्स है वह फील्ड है किससे? हाइपोथेटिकल लाइट ट्रांसमिटिंग मीडियम कॉल्ड एथर, विच इज रिजिड, इनविजिबल, मॉसलेस, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, हाई इलास्टिसिटी एंड नेग्लिजिबल डेंसिटी. All bodies including Earth move freely through this hypothetical medium without disturbing it. All bodies including Earth move freely through this hypothetical medium without disturbing it. Okay. Our next question is, what was the objective of Michelson-Morley experiment? Discuss in detail. चलिए हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे मैकलजोन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट का. ओके, चलिए देखते हैं. Objective of Michelson-Morley experiment was to detect the motion of Earth with respect to ether. The objective of Michelson-Morley experiment was to detect the motion of Earth with respect to ether. In 1887, Michelson and Morley performed an experiment. A simplified plan of experiment is shown below.
containing a monochromatic source S, a partially silvered glass plate P is inclined at 45 degrees to the incident beam. Two mirrors M1 and M2 are placed at equal distance L from glass plate. Telescope T is used to see interference. Okay? देखिए, objective of Michelson-Morley experiment was to detect the motion of Earth with respect to ether. जो ऑब्जेक्टिव था मैकेलसॉन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट का क्या था? टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू एथर. इन 1887 मैकेलसॉन-मॉर्ली perform an experiment. A simplified plan of experiment is shown below, containing a monochromatic source S, a partially silvered glass P, okay, is inclined at angle 45 to incident beam. Two mirrors M1 M2 are placed at equal distance L from glass plate. Telescope T is used to see interference. Okay? देखिए, two mirrors are at equal distance L from glass plate. If apparatus is at rest, then the two rays will take equal time to return to plate P, but apparatus is moving with Earth with respect to ether with velocity v. Let Earth is moving in direction pm2 of incident light. Then the time difference between two rays will be calculated as, okay? If c is the velocity of light in direction of arm pm2, then the relative velocity will be c minus v. Okay? If c is the velocity of light in direction of pm2, then the relative velocity will be c minus v. While on returning, it will become c plus v. Okay? If t1 is the time taken in complete journey, then t1 is the time taken in complete journey. ओके, तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम तो कितना है? t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यल क्या है? डिस्टेंस है. यल डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जाने का, c माइनस बी प्लस यल डिवाइडेड बाई आने का, यल डिवाइडेड बाई c प्लस b. ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, the second part of B moving toward arm PM1 with velocity c. If t dash is the time taken by the beam in going from plate to mirror, then the distance travel will be c t dash. Okay? Also in time t dash, the mirror travel the distance vt in right angle triangle p m1 m dash. Okay, considering figure, pm is equal to l, pm1 and m dash equal to vt and pm1 डैश इक्वल टू सी टी. ये आप फिगर में देख लीजिएगा. ओके, देखिए जो हमारा ये फिगर है पी एम वन एम डैश, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पी एम वन का स्क्वायर इज इक्वल पी एम वन डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम वन के स्क्वायर प्लस पी एम वन एम वन प्लस एम वन डैश का स्क्वायर. ओके, जो कि हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है? ये. ओके, आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट दिस एक्सप्रेशन
and put the values of pm1 dash and pm1 and m1 em1 dash. Okay, we get this expression. After solving it, we get t dash is equal to L divided by c in bracket 1 minus b square divided by c square power 1 by 2. Okay. Now if t2 is the total time in journey p m1 dash and p dash, then t2 क्या है हमारा? टोटल टाइम ऑफ जर्नी. ओके, सो t2 इक्वल टू 2t dash. ओके, we put the value of t dash, then we get t2 equal to 2l divided by c into 1 upon under root 1 minus b square divided by c square. Okay, if delta t is the time difference of two beams interfering at point p dash, then delta t equal to t1 minus t2. ओके, तो हमने t1 की वैल्यू क्या निकाली थी? 2l डिवाइडेड बाई c इन ब्रैकेट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, एंड t2 की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 2l डिवाइडेड बाई c इन ब्रैकेट 1 माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर पावर 1 बाई 2. ओके, आफ्टर सॉल्विंग इट we get this expression. ओके, एंड आप उसके बाद हम क्या करेंगे? बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर देंगे. ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो फाइनली आएगी क्या आ जाएगी? डेल्टा टी इक्वल टू एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यू. आप एक्सप्रेशन को याद कर लिया करिए. ओके, द करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस विल बी पार्ट डिफरेंस क्या होता है हमारा? पार्ट डिफरेंस क्या होता है? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी होता है. ठीक है, डेल्टा टी हमने फाइंड आउट किया है और सी हमारा सी हो गया, तो क्या हो जाएगा? पार्ट डिफरेंट इक्वल टू एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ओके, इफ वी इज मेड जीरो, देन जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा वुड बी जीरो. ओके, जब हमारी वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारा पार्ट डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो होगा. ओके, इफ v इज मेड जीरो, देन पार्ट डिफरेंस विल बी जीरो. जब हमारा वेलोसिटी जीरो होगा तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा. ओके, वी नो दैट इफ पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव चेंज बाय लेमडा, we know that if path difference between two interfering wave change by lambda, then the shift of one fringe appears. Thus, if n fringe are shifted, then the number of fringes delta n equal to path difference divided by wavelength. ओके, तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या था? एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई लेमडा. ये हो जाएगा हमारा n fringes are shift then. Okay, in actual experiment the apparatus was placed on a block of stone floated on mercury. In actual experiment the apparatus was placed on a block of stone floated on mercury, was rotated by 90 degree. Okay, was rotated by कितने डिग्री? 90 to introduce a path difference of same amount in opposite direction. Hence, a shift of 2l v square divided by c square lambda was expected. To get the observable shift, experimental values are l equal to 11 meter, v क्या हमारा? velocity of earth is equal to 3 into 10 to power 4 meter per second, and वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी? वेवलेंथ इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर, 10 पावर माइनस 7 मीटर, एंड जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है कितनी है? सी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, ओके,
After putting all these value, we get delta n equal to 0.4. Okay. The physicists were surprised to see that there was no shift in the fringes. The experiment was repeated various times and at various places, but no shift was observed. Thus, the motion of Earth through the ether could not be experimentally detected. Okay? The physicist was surprised to see that there was no shift in fringes. The experiment was repeated various times and various places, but no shift was observed. Thus, the motion of Earth through the ether could not be experimentally detected. Okay. Our next question is, how were the negative result of Michelson-Morley experiment interpreted? Okay. How were the negative results of Michelson-Morley experiment interpreted? चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. Explanation of negative results. Many explanations were given to explain negative result. Few of them are: first is ether drag hypothesis. According to this hypothesis, the moving earth drag ether with it. So there is no relative motion between earth and ether. Hence, no fringe shift is obtained. फिट्जजेराल्ड लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस. सेकेंड जो हमारा क्या है, फिट्जजेराल्ड लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस. फिट्जजेराल्ड एंड लॉरेंज गिव्स an hypothesis that all material bodies moving through ether are contracted in direction of motion by a factor of under root 1 minus b square divided by c square. This contraction equalizes time t1 and t2 and no shift was observed. Okay. फिर जो हमारे फिट्जजेराल्ड एंड लॉरेंस थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया दैट ऑल मटेरियल बॉडीज मूविंग थ्रू एथर आर कॉन्ट्रैक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन बाई द फैक्टर ऑफ कितने फैक्टर से, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. दिस कॉन्ट्रैक्शन इक्वलाइजेस टाइम t1 एंड t2 एंड नो शिफ्ट वाज एब्जॉर्ब्ड. ओके. थर्ड इज लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस or constancy of velocity of light. According to Einstein, velocity of light is invariant in every inertial frame of reference. In other words, velocity of light is constant in free space. देखिए, लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस और कंस्टेंटेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है. अकॉर्डिंग टू Einstein के अनुसार द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है इनवेरिएंट है, ठीक है, इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन अदर वर्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस. ओके. जो हमारी फ्री स्पेस है वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, इनवेरिएंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके. Our next question is, what are the postulates of special theory of relativity? चलिए देखते हैं हम क्या क्या postulates हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के. Postulates of special theory of relativity. The special theory of relativity is based upon two postulates. First is principle of equivalence. चलिए हम देखते हैं principle of equivalence होता क्या है. The law of physics have the same form in all inertial frames of reference, moving with a constant velocity relative to one another. Okay. The principle of constancy of speed of light. The speed of light in free space is the same in all inertial frames of reference. जो पहला पास्टुलेट है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस.
द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो लॉ ऑफ फिजिक्स है have a same form in all inertial frame of reference moving with a constant velocity relative to one another। ओके, और जो हमारा सेकेंड पास्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ constancy of speed of light, the speed of light in free space is the same in all inertial frame of reference। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट होती है सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, our next question is drive Lorentz transformation equation। Transformation equations: the equation relating to set of observations of an event in two different frames of reference are called transformation equation। The equations relating to set of observations of an event in two different frame of reference are called transformation equation। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का ये हमारा फिगर है, ठीक है। एक फ्रेम हो गया यस और सेकंड फ्रेम इज यस डैश। कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश हैविंग ओरिजिन ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक यस हो गया एक यस डैश हो गया विथ ओरिजिन ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ओके, सच दैट यस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी। जो हमारा यस डैश फ्रेम है मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू यस, यस के रिस्पेक्ट में इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, एट टी इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 बोथ फ्रेम्स coincide। Let x, y, z and t and x dash, y dash, z dash, t dash are the space-time coordinates for a same event p in two frames। ओके, जो हमारा x, y, z, t और x dash, y dash, z dash और t dash है क्या है, कोऑर्डिनेट है फॉर ए सेम इवेंट p, फॉर ए सेम इवेंट p in two frames। ओके, now let us assume that a measurement in x direction made in s frame is proportional to that made in s dash frame। ओके, क्या है, now let us assume that measurement in x direction made in s frame is proportional to that made in s dash frame। ओके, देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन होगा क्या होगा, जो हमारा एक्स डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स माइनस वी टी के। ओके, और सो एक्स डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट वाई गामा है इन ब्रैकेट एक्स माइनस वी टी। ठीक है, ये जो गामा टाइप का है इसे क्या बोलते हैं हम, लॉरेंज फैक्टर बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट laws of physics are same in all frames। According to first postulate, law of physics are same in all frames। Thus, the corresponding equation of x will be, putting the value of x dash from equation first to equation 2, x equal to देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन था क्या था, x डैश इक्वल टू गामा जो हमारा क्या है, लॉरेंज फैक्टर इनटू x माइनस वी टी। ओके, देखिए इस इक्वेशन में हम x डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनकर आ जाएगी। ठीक है, और हम x डिवाइडेड बाई गामा कर देंगे, गामा जो कि हमें क्या कहते हैं, उसे हम लॉरेंज फैक्टर बोलते हैं गामा को। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम वी टी को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको एक साइड ला देंगे। ठीक, तो हमें t की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो t की वैल्यू आएगी क्या आएगी, टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, टी डैश इक्वल टू वी टी मतलब गामा टी माइनस गामा एक्स बाई वी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान गामा का स्क्वायर। गामा जो हमारा क्या है, लॉरेंज फैक्टर है। ओके, टी इक्वल टू टी की वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, टी इक्वल टू गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश डिवाइड बाई वी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान गामा स्क्वायर। ठीक है, गामा को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फैक्टर। ओके, सिमिलरली ये भी आ गया। ठीक है, नाउ गामा कैन बी इवेलुएटेड फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, लेट ए लाइट सिग्नल
is given at origin at time t equal to t dash equal to 0. Okay, it travel with velocity c, which is same for frames s and s dash. Okay, its position will be c x equal to ct and x dash is equal to c t dash. Okay, substituting this value of x and x dash in equation फर्स्ट एंड थर्ड. देखिए जो हमारा सेकेंड पास्टुलेट था उससे क्या निकल कर रहा है हमारा x इक्वल टू सी टी और x डैश इक्वल टू सी टी डैश. जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है c और सिर्फ हमारा क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है t से t डैश. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, according to the second postulate, x equal to ct and x dash equal to ct dash, the value of speed of light is constant. Okay, only time is change. We put these equations in equation number first and second. We get ct dash equal to gamma t in bracket c minus v and ct equal to gamma t dash in bracket c plus v. Okay, देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स वी गेट दिस वैल्यू. ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ गामा. ओके, विच इज लॉरेंज फैक्टर. हमें लॉरेंज फैक्टर की वैल्यू निकल कर आ गई गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ओके, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड था अब उसमें हम गामा की वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो हमारा एक्स डैश की वैल्यू ये निकल कर आई, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस पी टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ओके, आफ्टर सॉल्विंग टी डैश वी गेट दिस. जो हमारी गामा की वैल्यू आई थी गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर को. ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ठीक है, जो वैल्यू निकल कर आई क्या आई, बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 गामा स्क्वायर. गामा क्या हमारा लॉरेंज फैक्टर है. ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे. पुटिंग दिस इन द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ओके, जो कि हमारी ये वैल्यू है. ओके, हमारी टी डैश की वैल्यू आ गई है. ठीक, और ये हमारा वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड बिकॉज देयर इज नो मोशन इन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. ओके, आर नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. इक्वेशन 8, 9, 10 and 11 are known as Lorentz transformation equations. Okay, our next question is, so that Lorentz transformation are converted into Galilean transformation at low velocities. चलिए देखते हैं हम आगे. रिडक्शन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, हमने अभी फाइंड आउट किया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर and the value of y dash is equal to y and z dash equal to z because there is no motion in y direction and z direction. Okay, and the value of t dash is t dash equal to t minus xp divided by c square divided by √1 minus b square divided by c square. Okay, for low velocities v very less than c, the value of v by c is less than 1, so the value of v square divided by c square is also very less than 1. Okay, so at low velocity Lorentz transformation equations become
x dash equal to x minus vt, and y dash equal to y, z dash equal to z, t dash equal to t. Okay. Our next question is, what are inverse Lorentz transformation equation? Inverse Lorentz transformation equations: x equal to x dash plus vt divided by under root x dash plus vt divided by under root 1 minus v square divided by c square, and the value of y equal to y dash and the value of z equal to z dash. There is no motion in y direction and z direction. Okay. And the value of t equal to t dash plus x dash v divided by c square divided by under root 1 minus p square divided by c square. Our next question is, what do you mean by length contraction? Derive a mathematical expression for it. चलिए हम देखते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है. A body moving with a velocity v relative to an observer appears to the observer to be contracted in length in the direction of motion by a factor under root 1 minus p square divided by c square, whereas its dimensions perpendicular to the direction of motion are unaffected. ओके. देखिए हमारा टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है. एक हमारा यस हो गया, सेकेंड यस डैश हो गया. ओके. देखिए जो हमारा यल डैश लेंथ यल नॉट लेंथ की बॉडी है एक, ठीक है, जिसका यस डैश फ्रेम से डिस्टेंस कितना है, एक्स टू डैश सेकेंड एंड का और फर्स्ट एंड का एक्स वन डैश. ओके. और यस फ्रेम से कितने डिस्टेंस पे है, सेकेंड एंड एक्स टू और फर्स्ट एंड एक्स वन. ओके. और यस जो फ्रेम है हमारा उसका ओरिजिन ओ है और एक्स डैश का ओ डैश. ओके. Let us consider a rod placed along x dash axis of moving frame s dash. Let x dash and x dash 1 and x dash 2 be the coordinate of the end of rod as seen by an observer in s dash. Then the observed length of s dash is L equal to x2 dash minus x1 dash. L naught is the rod length in rest frame. Okay. Now another observer measures the length of rod in a stationary frame, yes, relative to which rod is moving with velocity v. If x1 and x2 are position coordinates of rod at time t, then appear length L will be L equal to x2 minus x1. ओके. देखिए जो x2 डैश की वैल्यू है कितनी है, x2 माइनस वी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और x1 डैश की वैल्यू कितनी है, x1 माइनस वी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ओके. And so L naught equal to x2 dash minus x1 dash. We put these two values in this equation. We get L x2 minus x1 divided by under root 1 minus v square divided by c square, and the value of x2 minus x1 is equal to L. Okay. So L naught equal to L divided by under root 1 minus v square divided by c square. Okay. So L is equal to L naught under root 1 minus v square divided by c square. Okay. The length L naught measured in frame in which rod is at rest is called proper length. The length L naught measured in frame in which rod is at rest is called proper length. Cases. चलिए हमारा जो पहला केस है देखते हैं. If v equal to c, then form L equal to L naught under root 1 minus v
v square divided by c square. L equal to 0, that is a rod moving with velocity c will appear as a point to stationary observer. Okay, if v equal to c, then from L equal to L naught under root 1 minus v square divided by c square, L equal to 0. जब हमारे v की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट के, तो हमारे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. दैट इज ए रॉड मूविंग विथ वेलोसिटी c will be appear as the point to stationary observer. Okay. Second is each observer in S and S dash system finds that the other rod is shorter than the rod of his own frame if the rod is available in each frame. Third is if v is less than c, L equal to L naught, due to which we cannot observe the length contraction in daily life. Okay. जब हमारे v की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ वेलोसिटी से बहुत छोटी होगी, तब हमारे लेंथ की वैल्यू L इक्वल टू L नॉट हो जाएगी, ड्यू टू विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ. ओके. Our next question is, what do you mean by time dilution? Derive mathematical expression for it so that it is a real effect. What is the proper time? What do you mean by time dilution? Derive mathematical expression for it so that it is a real effect. What is proper dilution? Okay. चलिए हम देखते हैं व्हाट इज टाइम डायल्यूशन. टाइम इंटरवल आल्सो अफेक्टेड बाय रिलेटिव मोशन. ए क्लॉक इन ए मूविंग फ्रेम एस डैश measures the longer time interval between two events that occurs in a stationary frame of reference than the same time interval measured by the clock in stationary frame. Yes, this is known as time dilution. टाइम डायलेशन. ओके. जो हमारा टाइम इंटरवल होता है आल्सो अफेक्टेड बाय रिलेटिव मोशन. ए क्लॉक इन मूविंग फ्रेम एस डैश मेजर द लॉन्गर टाइम इंटरवल. मूविंग फ्रेम में हमारा जो टाइम इंटरवल होगा वह मेजर होगा लॉन्गर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स दैट अकर इन ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द same time interval measured by the clock in stationary frame. Yes, this is known as time dilation. Okay. हमारा जो है टाइम इंटरवल जो मूविंग फ्रेम में ज़्यादा मेजर होगा एज कंपेयर टू द इन मेजर्ड इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ यस. ओके. जो हमारा यस डैश फ्रेम है उसमें टाइम इंटरवल लॉन्गर मेजर होगा और यस में मतलब उससे कम मेजर होगा. ओके. लेट ए क्लॉक बी प्लेस एट यस डैश इन फ्रेम यस डैश. An observer in S dash find the clock gives two ticks at time t1 dash and t2 dash, so that the time interval t naught in frame S dash will be t naught equal to t2 dash minus t1 dash. Now another observer measures the time interval between same two ticks from a stationary frame S, relative to which the S dash is moving with velocity v. If he records the ticks at time t1 and t2, then the time interval will be t equal to t2 minus t1. From the inverse Lorentz transformation equation we have t2 equal to
t2 dash plus x dash v divided by c square divided by under root 1 minus b square divided by c square, and t1 equal to t1 dash plus x dash v divided by c square डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारा किस लिए है? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, सो टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट टी नॉट इक्वल टू टी इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ओके, It shows that to the stationary observer in S, the time interval appeared to be lengthened by a factor 1 upon under root 1 minus b square divided by c square. This phenomena is known as time dilation. If v equal to c, then t equal to infinity. It means that clock moving with speed of light will appear to be completely stopped to a stationary observer. Proper time, the time interval between two events which occurs at same position recorded by a clock in the frame in which the event occur in which in which the event occurs is called proper time. Okay, the time interval between two events, though events which का time interval which occurs at same position recorded by an clock in the frame in which event occur is called proper time. Okay, the time interval between two events which occur at same position recorded by a clock in the frame in which the event occur is called proper time. Okay, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन न्यू मेजॉन डिके। न्यू जो कि हमारा मेजॉन डिके है आर क्रिएटेड बाय कॉस्मिक रे पार्टिकल्स एट ए हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड रीचेस द अर्थ इन वेरी लार्ज नंबर। ओके, जो हमारा न्यू है मेजॉन है created by cosmic ray particles at the height of 10 kilometer from the earth and reach the earth in very large number. Okay, their speed is, जो मेसॉन का स्पीड है कितना है 0.0994 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड विच इज 0.998 c. Also, their lifetime is 2 into 10 to the power minus 6 second, after which it decay into an electron. Okay, hence in its lifetime it can travel a distance only of 2.994 into 10 to the power 8 into 2 into 10 to the power minus 6, that is nearly equal to 600 meters. Then how they reach on earth? The answer lies in time dilation. Their lifetime of meson is 2 into 10 to the power minus 6 second in its own frame of reference t naught. Okay, in observers frames on earth it is lengthened due to time dilation as t equal to t naught divided by under root 1 minus b square divided by c square. We know the value of v, which is equal to 0.998 times c. Okay, after putting this value in this equation we get the value of time which is t equal to 3.17 into 10 power minus 5 second. In this relative lifetime it can travel a distance 2.994 into 10 to the power 8 into 3.17 into 10 to the power minus 5, which is equal to 9500 meters. Okay, or 9.5 kilometer.
Okay. Now it is possible for meson to reach on. Our next question is derive relativistic velocity addition theorem so that it is consistent with Einstein's second postulate. चलिए हम देखते हैं इसके आंसर को. Velocity addition theorem or relativistic addition of velocities. The relativistic addition of velocities is been derived by using Lorentz transformation equation. जो हमारा रिलेविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी होता है इज बीन डेराइव्ड बाय यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. लेट ए फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. लेट ए फ्रेम जो है हमारा एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v with respect to stationary frame s in positive x direction. Let a particle is also moving in same direction. जो हमारा फ्रेम है यस मूव कर रहा है कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. और लेट ए पार्टिकल इज आल्सो मूविंग इन सेम डायरेक्शन इफ द पार्टिकल मूव थ्रू ए डिस्टेंस डी एक्स इन टाइम इंटरवल एट इन फ्रेम यस. Then absorbed velocity by observer in stationary frame s is given by u equal to dx by dt. Similarly, for an observer in s dash, the distance covered and time taken with different. Let it be dx dash and dt dash. Then the velocity of the particle s dash frame will be u dash equal to dx dash divided by dt dash. Okay. From Lorentz transformation equation, as we know that x dash equal to x minus bt divided by under root 1 minus b square divided by c square. And time क्या होता है, t dash equal to t minus xv divided by c square whole divided by under root 1 minus v square divided by c square. Okay. On partial differentiation of the above equations we get. अगर हम above जो equations है ये बोथ डिस्पोजिशन का और टाइम का, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ठीक है. और डी टी डैश का वैल्यू कितना आएगा, डी टी माइनस वी डी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ओके. यूजिंग दिस वैल्यू फॉर यू डैश वी गेट यू डैश इक्वल टू डी एच डैश डिवाइडेड बाई डी टी डैश. ओके. देखिए जो हमारा पोजीशन का ये एक्सप्रेशन था और ये टाइम का, अगर हम इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनकर आएगा ये आएगा पोजीशन का और ये टाइम का आएगा. ओके. यूजिंग दिस वैल्यू फॉर यू डैश वी गेट. ठीक है. एज वी नो दैट यू डैश इक्वल टू डी एक्स डैश डिवाइड बाई डी टी डैश. ओके. वी पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स डैश एंड डी टी डैश इन दिस इक्वेशन. वी गेट द वैल्यू ऑफ यू डैश which is u dash equal to u minus v divided by 1 minus uv divided by c square. Okay. This equation represents the relativistic addition formula. Similarly, for u we have u equal to u dash plus v divided by 1 plus u dash v divided by c square. Okay. देखिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारा u डैश के लिए है, u डैश इक्वल टू यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ओके. और ये वाला एक्सप्रेशन हमारा u के लिए है, u इक्वल टू यू डैश प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर. ओके. कंसिस्टेंसी विथ आइंस्टीन सेकेंड postulate. ओके. इफ यू डैश इक्वल टू सी, अगर हम मान लें कि जो हमारी यू डैश की वैल्यू है वह किसके बराबर है, सी के, स्पीड ऑफ लाइट के, देन यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, यू इक्वल टू सी प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी भी डिवाइड बाई सी स्क्वायर.
ठीक है, विच इज इक्वल टू यू इक्वल टू सी। ओके, अगर हमारे यू डैश की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी तो हमारे यू की भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी के बराबर हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ओके, thus absorber in s dash and s recorded the same value for velocity of photon. C is same in all frames, which is the second postulate. Okay, thus absorber in s dash and s recorded the same value of velocity of photon. C is same in all frame, which is the second postulate. जो वैल्यू ऑफ सी है आर फ्रेम में सेम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पास्टुलेट। ओके, वी आल्सो से दैट एनी वेलोसिटी एडेड टू सी सिंपली रिप्रोड्यूसेस सी, और सी is the maximum attainable velocity in nature, or no signal can travel faster than light in vacuum. We can also say that any velocity added to c, कोई भी वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट में ऐड की जाती है, सिंपली प्रोड्यूस सी, स्पीड ऑफ लाइट। सी इज द मैक्सिमम अटेंड वेलोसिटी इन नेचर, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है मैक्सिमम अटेंड वेलोसिटी होती है नेचर में, और नो सिग्नल कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, और कोई भी सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं मूव कर सकता है इन वैक्यूम। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so that conservation of linear momentum leads to variation of mass with velocity. So that conservation of linear momentum leads to variation of mass with velocity. चलिए हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। in relativistic mechanics the mass of body varies with velocity. In relativistic mechanics the mass of a body varies with velocity, के साथ मास वेरी करता है। ठीक है, the mass of body moving at very high speed, which is equal to speed of light, relative to an observer, is longer than its mass when it is at rest by a factor 1 upon under root 1 minus b square divided by c square. It is given by mass equal to m naught divided by under root 1 minus b square divided by c square. m naught is the rest mass. Okay, देखिए वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी क्या है हमारा, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द मास ऑफ बॉडी वेरीज विथ वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हमारा जो मास ऑफ बॉडी होता है वो वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। द मास ऑफ बॉडी एट वेरी हाई स्पीड, जो हमारा मास ऑफ बॉडी है एट वेरी हाई स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज लार्जर देन इट्स मास। ओके, जो ऑब्जर्वर का मास होगा वह इनिशियल मास से बहुत ज़्यादा होगा जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को अटेंड कर लेगी। ओके, व्हेन इट इज एट रेस्ट बाय ए फैक्टर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इट इज गिवन बाई m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास। ओके, चलिए हम इसके डेरिवेशन को भी देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स s and s dash such that s dash is moving with velocity u। देखिए हम कंसीडर करते हैं दो फ्रेम्स को, एक हो गया हमारा s और सेकेंड s dash। ठीक है, सच दैट s dash जो हमारा फ्रेम है मूविंग विथ वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, लेट टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी u dash and minus u dash in frame s dash approach each other. okay, देखिए टू पार्टिकल्स है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है,
एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, यू डैश है, और सेकेंड पार्टिकल की माइनस यू डैश है, ठीक है। बोथ पार्टिकल अप्रोच ईच अदर, ठीक। द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स मास m1 and m2 seen from s from will be given by relativistic addition of velocity as, okay। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल मास m1 and m2 seen from s frame will be given by relativistic addition of velocities as un equal to u dash plus b divided by 1 plus u dash b divided by c square, okay। and u2 is given by u2 equal to minus u dash plus b divided by 1 minus u dash b divided by c square, okay। This is our second equation. At collision, two particles come at rest with respect to frame s dash, but from s they appear to be moving with velocity v, okay। जब दोनों बॉडी कोलाइड कर जाएंगी, कोलिजन हो जाएगा, टू पार्टिकल कम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम यस डैश के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो हमारा फ्रेम यस है उसके रिस्पेक्ट में दे अपियर टू बी मूविंग विथ वेलोसिटी v, ओके। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम बोथ में क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। देखिए, इनिशियली एक बॉडी का मास कितना था, m1 था, वेलोसिटी कितनी थी, un थी, ठीक है। और सेकेंड पार्टिकल का मास मान लीजिए कि m2 था और वेलोसिटी v2 थी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, सेम हो गई होगी, तो m1 प्लस m2 इंटू v, ओके। एंड वी ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2, हमने पहले ही u1 और u2 की वैल्यू निकाल रखी है, तो हम u1 और u2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट दिस एक्सप्रेशन, ओके। फाइनली हमारा सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनकर आया, क्या आया, m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू 1 प्लस यू डैश v डिवाइड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू डैश v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ओके। हमें ये फाइंड आउट होकर आया एज ए इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। हमने पहले ही फाइंड आउट किया था un इक्वल टू यू डैश प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश v डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ओके। ये हमारे un की वैल्यू पहले ही हमने फाइंड आउट किया है। अब हम u1 को दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ओके। देखिए, हम इस वैल्यू को पहले अपने आप से मानेंगे 1 माइनस यू एन स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और हम इसमें यू एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, ओके। इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ये बनकर आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन फाइनली वी कम टू आवर आंसर विच इज, जो हमारा फाइनली निकल कर आया 1 माइनस यू एन स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू ये आई, ठीक है। उसके बाद हमने इसको उस साइड ले जाना है और इसको डिवाइड में ला देना है, तो हमारा एक्सप्रेशन बनकर आया ये वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको जो है अंडर रूट में ला देंगे, ठीक। फाइनली सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन बनकर आया है इसे आप लिख लीजिए, ठीक, ये वाला। और आगे देखिए, सिमिलरली जो है 1 माइनस यू डैश 1 माइनस यू डैश भी डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू भी इतना आ जाएगी, जैसे हमने पहले भी देखा, ठीक है। अब क्या था, हमने m1 बाई m2 की वैल्यू निकाल के पहले ही सही जानते हैं कितनी होती है। देखिए, जो हमने m1 बाई m2 की वैल्यू पहले निकाल के रखी थी ये थी, ठीक है। अब देखिए, हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 1 प्लस यू डैश भी डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, और किसकी 1 माइनस यू डैश भी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ओके। जब दोनों की वैल्यू 1 माइनस यू डैश भी डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू और 1 प्लस यू डैश भी डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू हम जो m1 बाई m2 में था उसमें इक्वेशन में उसमें पुट करेंगे, तो फाइनली हमारा m1 बाई m2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u2 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस u1 की स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ओके। ये हमारा एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा।
Now if second particle is moving with zero velocity in frame S before collision, okay, then u2 equal to 0 and m2 equal to m0. Okay, if second particle moving with zero velocity in frame S before collision, then the value of u2 is 0 and the value of m2 will be equal to m0, which is rest mass. Okay, then we get the value of m1, which is m1 equal to m0 divided by under root 1 minus un square divided by c square. Okay, we finally get the value of m1. Since two particles are exactly identical, therefore replacing m1 by m and un by v, that is, finally we get m equal to m0 divided by under root 1 minus v square divided by c square. ओके, जो हमारा फाइनली मास की वैल्यू है कितनी आई, m इक्वल टू वेरिंग मास की m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर. दिस इज द रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी. ओके, इसमें हम चलिए केसेस को भी जान लेते हैं. जो हमारा पहला केस है m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर. ओके, जब हमारे वेलोसिटी v की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट के, तो हमारे मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी. किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई उसकी स्पीड, तो उसकी मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, इट मीन्स नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ स्पीड. इट मीन्स नो पार्टिकल कैन ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट. कोई भी पार्टिकल हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं मूव करता है. सेकेंड केस क्या है, इफ़ वी इज़ वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट. सेकेंड केस में हमारा जो वेलोसिटी है बहुत ही छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर इज वेरी लेस देन 1. हेंस मास इक्वल टू m0. Hence in daily life we do not absorb mass variation. Our next question is derive Einstein's mass energy relation. हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, derive Einstein's mass energy relation. ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं. Einstein mass energy equivalence. According to Einstein, mass can be converted into energy. According to Einstein, जो हमारा मास है कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड कैन बी गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर. ओके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास. दिस इज कॉल्ड एज मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड कैन बी गिवन बाय रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर. ओके, चलिए हम इसके डेरिवेशन को भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी वी हैव मास इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, वी नोज दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, and we also know that as we know that momentum equal to होता है mass into velocity. okay, and force equal to rate of change of momentum. okay, and if you put the value of momentum p equal to mv in this equation, we get dmv by dt, which is equal to m dv by dt plus v dm by dt. okay, according to theory of relativity, mass of particle varies with velocity. according to mass of relativity, जो mass of body होता है vary करता है किसके रिस्पेक्ट में, with velocity. hence mass and velocity भी both are variable. okay, according to theory of relativity, mass of particle varies with velocity. hence mass m and velocity भी both are variable. okay, आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द
theory of relativity, mass of particle varies with velocity. Hence mass m and v both are variable. Okay, ये हमने देखा. If a force F displaces the particle through a small distance ds, then the work done is stored by the particle as its kinetic energy dk. Therefore देखिए, as we know that work done is equal to होता है force into displacement. Okay, if the force F displaces the particle through a small distance ds. Okay, if a force F displaces a particle, the particle through a small distance ds, then the work done is stored by the particle as its kinetic energy. जो हमारा वर्क डन होगा स्टोर्ड होगा किसके रूप में? एज ए काइनेटिक एनर्जी डीके. सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी which is equal to F dot ds. Okay, we put the value of force here. Okay, we get this expression, mass into dv by dt plus v dm by dt into ds. Okay, after multiplying in this equation ds, we get finally mv dv plus v square dm. Okay, differentiating this first equation first we get, जो हमारा पहला इक्वेशन था अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये बनकर आएगा. ओके, जो हमारा पहला इक्वेशन था m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, उसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनकर आया. ओके, और जो हमने डी के की वैल्यू निकाली थी उसमें एम बी डी वी की जगह क्या पुट कर देंगे? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एम की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. ठीक है, तो हमारा फाइनली एक्सप्रेशन जो बनकर आया क्या आया? डी के इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस बी स्क्वायर डी एम विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम. ओके, इफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज के. ओके, if the changing kinetic energy of particle is k when its mass changes from rest mass m naught to mass m. ओके, देखिए हमने क्या निकाला? डी के की वैल्यू निकाली. क्या आया? डी के इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर. ओके, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे मास m नॉट टू m, ठीक है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. ओके, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आई क्या है? के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर. ओके, एंड नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल विल बी, जो हमारा टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी क्या होगी? इक्वल टू के प्लस ई नॉट. ओके, जब हम इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ई इक्वल टू होगा एम माइनस एम नॉट इंटू सी की स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. ओके, जो हमारा ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ओके, दिस इज द आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेराइव रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? डेराइव रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. ओके, वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू होता है क्या? एम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है. एंड वी नो द वैल्यू ऑफ मास एम विच इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. ओके, विद वी पुट द वैल्यू ऑफ एम in this equation we get finally m naught c square divided by under root 1 minus b square divided by c square, which is our first equation. Okay, as we know that momentum equal to होता है mass into velocity. Okay, if we put the value of mass in this equation we get m naught v divided by under root 1 minus b square divided by c square. Okay, देखिए हम बोथ साइड सी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन ये बनकर आ जाएगा. ओके, ठीक है,
देखिए जो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट ये है और ये मोमेंटम का आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को बोथ साइड स्क्वायर करके ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व होने की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम नॉट के स्क्वायर इंटू सी के पावर 4। ओके, जो एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन बनकर आया क्या आया, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू सी पावर 4। ओके, दिस इज आवर रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, दिस इज रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मासलेस पार्टिकल। चलिए हम देखते हैं क्या मासलेस पार्टिकल क्या होता है। मासलेस पार्टिकल्स, द पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास आर कॉल्ड एज massless particle. Okay, classically such particle cannot exist, however in relativity its position from relativity. Okay, particles with zero rest mass are called as massless particles. Classically such particle cannot exist, however in relativity its position from relativity. Okay, as we know that energy equal to mc square. Okay, we put the value of mass which is equal to m naught divided by under root 1 minus b square divided by c square. Okay, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा e की वैल्यू आ जाएगी m नॉट c स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ओके, और मोमेंटम की वैल्यू, जब मास की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे ये वाला, तो हमारा मोमेंटम का एक्सप्रेशन ये बनकर आ जाएगा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब दोनों को सॉल्व करने के बाद स्क्वायर करके ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का ई स्क्वायर में से अगर हम पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो एनर्जी और मास का रिलेशन आएगा ये बनकर आएगा। हमने पहले भी देखा है इसको। ओके, हमने क्या देखा था अभी, देखिए जो एनर्जी है इसका ई स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, और मोमेंटम में सी से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस स्क्वायर में से, तो हमारा ये फाइनली मास और एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, केस ऑफ फोटोन, इन केस ऑफ फोटोन वी नो दैट फॉर massless particle here photon rest mass is m not equal to 0, तो मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, e बाई सी स्क्वायर। ओके, मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू e बाई सी स्क्वायर। ओके, सो एनर्जी ऑफ massless particle इज e स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ओके, which is equal to where here equal to p into c. Okay, the momentum of massless particle is p equal to e by c, which is equal to h nu by c. Okay, जो हमारे पार्टिकल का मोमेंटम है क्या निकल कर आया है, p equal to e by c, which is equal to h nu by c. Okay. ओके, थैंक यू टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होते हुए थैंक यू टू यू ऑल।